examiner in your exam as well. सर Okay, कॉपी पेस्ट so मतलब क्वेश्चन स्टाइल ऐसे होगा उनका. yes, question style ऐसे होगा. ओके Let's see क्वेश्चन कि स्टाइल. आपको let's see कि आपको कितनी knowledge है इनके बारे में, right? So one by one, I'll be starting the questions. Now they say that write down the value of five. Write down the value of five in the number this, right? So first of all, you can see that you have to write the number 253624. Okay, 5 is at this place, right? 5 below. Add zeros जितने number उसके बाद हों. So the value is 50,000. Get it? Because 5 is on the thousand place. Do you get this, Vita? यस सर. Is it easy? यस सर. अगर आ जाता पेपर में क्वेश्चन के राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 3 तो क्या लिखती आप? 3000. वेरी गुड, जबरदस्त. तो ये इस तरीके से हम किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि वो 1000 प्लेस पे लिखा हुआ था और 10,000 प्लेस पे 5 लिखा हुआ है. सो दैट्स द रीजन इट इज 50,000. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द क्वेश्चन नंबर 2. They say that the crowd at sports event is exactly 35687. So you are to that's number nearest 10. So write the number again for better understanding. थोड़ा फासले पे लिखा करें number. So ones and tens. This is the number, right? So number after it is 7, which is greater than 5. So it will get 9. So this is the nearest 10. So 35690. Get it? Now they say that in this question, they say question number 2, write down the number of lines of symmetry of this diagram. तो ये हमेशा तभी पॉसिबल होता है जब आप रूलर से लाइन लगाएं. सो आपने रूलर रख लेना में लगे इस तरह पेंसिल से लाइन लगानी है इसके दरमियान में. आपने इसको हाफ करना है, एग्जैक्ट हाफ, कि ये मिरर इमेज बनेगी दूसरे की. सो ये सो कैन आई ड्रॉ अनदर वन? आई डोंट थिंक सो. कैन आई ड्रॉ अनदर वन? नो सर. So there's one. Okay. So moving forward, they say that write the of rotational symmetry of this diagram. तो इस diagram of rotational symmetry find out करनी है. So we can see that that the shape is 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's a hexagon, but it looks like the hexagon is regular. Agree? But the plus sign, it will create the difference. So we know that if this point is moved along the point center, this center point, so this point 1 will come here. Agree? Agree? And this 1 dash will go there at the top. So it means that the rotational symmetry of this diagram, if I rotate this shape onto 360, after every 180 degree, after every 180-degree, shape remains the same. Yes or no? Remains the same. In order to determine the rotational symmetry, हम लोग 360 में किसी भी शेप को रोटेट करते हैं और इमेजिनेशन के जरिए हमने देखना है कि ये हम लोग जो हैं इसको एग्जैक्ट वो कर सकते हैं कि नहीं. गेट इट? सो वी सॉ दिस ऑलरेडी कि हमें नजर आ रहा है कि ये 360 में सिर्फ 2 दफा ही अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ सकता है. सो आंसर इज 2 or in letters 2. Do you understand this, Barira? यस सर. Any problem? नो सर. Hoor? Okay. Look at the question. The table shows the monthly average temperatures. Thank you, Noor. Thank you, Hoor. The table shows the average monthly temperature in centigrades in the Vladivostok.
पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ। जनवरी, फरवरी, मार्च टिल दिसंबर। फाइंड आउट द डिफरेंस, मैथ्स में डिफरेंस कहते हैं माइनस को, बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर। लेट्स सी which was highest. So Barira, which temperature is the highest temperature according to you on the given question paper? 20 August. What? 20 August. So August is the most highest temperature, and which was the lowest temperature? Minus I 1. think minus 12 is the lowest. Minus 12. Yeah. Something. Minus 12 is the lowest, and 20 is the highest. So I'll write minus 12 in the bracket, right? So minus minus plus. So 20 plus 12 is equals to 32 degrees centigrade is the difference between the highest and the lowest temperature in this particular city or country. Get it? Now they say that in February, the average temperature in Yakutsk is 37 degrees below that in Vladivostok. पता नहीं कितना मुश्किल नाम है. Find the average temperature in February. So let's see. So हम देखते हैं कि इस कंट्री की टेम्परेचर क्या है फरवरी में. इट इज -8. Yes or no? To the question, it is below, it is 37 degree below, so minus 37. So minus minus plus and the sign of greater value. So 37 plus 8 is 45 degrees. So 45 degrees टेम्परेचर जो है ना वो इस शहर या मुल्क में होगा. गेट इट? समझ आ गई बेटा आपको? Sir. Okay. They say that two cubes have the volume of 152 centimeter cube has an edge of length of 5 centimeter. Calculate the length of the edge of the other cube. Okay, that's very easy because the volume of the cube is length L cube. We have length of one cube. So we have to distribute the paper like this कि paper में जगह बने आपके लिए. So volume is a volume of the cube having 5. So the volume, this must be 125 centimeter cube. Yes or no? So now the total volume is 152. So total minus 1, total minus 1. So means that 152 minus 125. So the answer is 27, right? So volume of the second cube is equals to 27. That is equals to L cube. I have to find out the length of the second cube. So taking cube root on both sides, or power 1 by 3. So 3 and 3 cancels. So length is equals to cube root of 27 is equals to 3. Yes or no, Barira? So length of the second cube is 3. Do you understand this? Okay. Now they say that work out the length of all the edges of the larger cube. So which one is the larger cube? G, which one is the larger cube? Better work out the total length, all the edges of the larger cube. So the first one. Which one? The first one. Okay, the first one cube, it has the volume of 125. Volume of the first length of the first cube was 5. The total length of all the edges of the larger cube is मतलब हुआ. ये ये समझ क्या नहीं. मांग रहे हैं आपसे? रीड करें क्वेश्चन जरा. Work out the total length of the edges of the larger cube. हाँ जी. तो टोटल लेंथ ऑफ लार्जर क्यूब, आपको इसका नेट पता है? नेट क्यूब का नेट क्या होता है पता है ना आपको? जी. ये है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ. यस और नो? Yes. अब ये सारी लेंथ्स क्या होंगी? 5 5 होंगी. जी.
तो लिखिए 5 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 कितने हो गए बेटा? एक और भी है, काउंट करें प्लीज, काउंट मी। So 5 plus 5, 10, 15, 20, 25 plus 5 is what? 25 plus 5 is 30, 35, 40, 45, 50, 55 plus 5 is 60, 65 and 70. ये क्या हो गया? ये इसका पैरामीटर हो गया इसके नेट का, यस और नो? हेलो बेटा, आवाज आ रही है? हाउ मेनी एजेस दे हैव? क्यूब के कितने एजेस होते हैं? आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ क्यूब here again, so kindly pay attention. So this is the cube. क्यूब के कितने एजेस होते हैं बेटा? How many edges they have? Do they have 12 edges or not? Do they have 12 edges or not? Yes, 12, 12. Okay, बरीरा, क्यूब के कितने एजेस होते हैं बेटा? 3 edges. बेटा 4 टॉप पर हो गए, 4 बॉटम पर हो गए, 2 फ्रंट पर हो गए और 2 बैक पर हो गए। एग्री? फ्रंट पर 4 इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो ऊपर वाले टॉप का हिस्सा है। एग्री? इज इट क्लियर? So Yes, इसका sir. मतलब है कि length of the cube is 6 and 6 multiplied by 12. So length of all the edges is 60. Get it? तो ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर आपसे नेट के जरिए भी पूछ सकता है, आपको डायग्राम के जरिए पूछ सकता है। ठीक है? सो क्यूब हैज 12 एजेस, 12 एजेस होते हैं क्यूब के। 4 ऑन द टॉप, 4 ऑन द बॉटम, 8 हो गए। फ्रंट पे 2 और बैक पे 2 एजेस, मतलब कोनों की बात हो रही है। ठीक है? क्योंकि अभी ये ना कहना कैसा, फ्रंट पे भी 4 होते हैं ना, लेकिन फ्रंट पे 4 होते हैं, लेकिन वो जो 4 है ऊपर और नीचे वाला जो है, एक ऊपर वाले के साथ अटैच है और एक नीचे वाला अटैच है। गेट इट? So total is 60. So, okay जी. The diagram shows the net of a solid drawn on 1 centimeter grid. Okay. So name the solid. ये कौन सा solid बना हुआ है? कौन बता सकता है बेटा? किसका नेट है? अरबाब? So it's a cylinder. Very good. जबरदस्त. Name of the solid is cylinder. And the dimensions are? So 2 dimensions. Dimensions? Three. जी, डायमेंशन बेटा, डायमेंशंस होती हैं। आपको पता है कि सिलेंडर के अंदर क्या क्या होता है? 2 circle. सिलेंडर के अंदर होता है पाई, होता है आर, होता है और एच होता है। यस और नो? Yes, sir. सो रेडियाई ऑफ द दिस इज कितनी है? ये 1.5 है। Yes, sir. सो डायमेंशंस, रेडियस इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है बेटा, जरा चेक करें। 1 2 3 4 5 6 कितनी है बेटा? 6 centimeters. 6 सेंटीमीटर। तो यही दो डायमेंशन होती हैं जो कि सिलेंडर में होती हैं। एग्री और नॉट? Yes, sir. एनीवन एल्स? जी अरबाब, समझ? बरीरा बेटा, आपको समझ आई है बेटा? ये आपके पेपर में इस तरह आने वाले हैं। जी सर, आ गई समझ। बरीरा सर आ बेटा, गई। ये सिलेंडर का नेट है, मतलब सिलेंडर को खोलते हैं, सिलेंडर के टॉप पर और बॉटम पे सर्कल होता है। गरे? जी। ओके। राइट डाउन अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 15। तो बिटवीन है तो आप जरा वो नंबर लिखें जो इनके दरमियान में आते हैं। 11 12 13 14। ओके, ये 4 नंबर आते हैं, दोनों इवन नंबर्स को काट दिया क्योंकि इवन नंबर 2 में आता है। सो 11 एंड 13 दे बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो दे सेड अ प्राइम नंबर, तो आपने एक लिखना है तो आप एक लिख दे अपनी मर्जी का। ठीक है?
ओके, एंड इररेशनल नंबर बिटवीन 10 एंड 15, इररेशनल नंबर होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स, हमने याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट 9 जो है वो 3 के बराबर है, एग्री। स्क्वायर 36 जो है वो 6 के बराबर है, अभी भी 10 से बड़ा नहीं हुआ। तो स्क्वायर रूट 100 जो है ये 10 के बराबर है, ओके। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि स्क्वायर रूट 105 लिख देते हैं, तो आंसर 10 के बीच में आएगा, ओके। यस और नो? यस। सो द आंसर इज स्क्वायर रूट 105। बरीरा बेटे, ये समझ आई है कि नहीं आपको? जी सर, आ गई इफ यू समझ। अंडरस्टैंड, ओके। ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकती हैं आप भी, और ये आईजीसीएसई वाले भी, अरबाब लोग, आप लोग भी। अच्छा, ओके सर। ओके। 20 स्टूडेंट्स वर आज, तो जैसे ही 20 स्टूडेंट्स, तो मतलब इसको अंडरलाइन करें, इसका मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में होने वाली है वो 20 होगी। गेट इट? नाउ दे से दैट नंबर ऑफ पेट्स, 0 पेट्स जो हैं वो 3 लोगों के पास हैं, एक पेट जो है वो 8 लोगों के पास है, 2 पेट जो हैं वो 3 लोगों के पास है, और 3 पेट 4, और 4 पेट किसी के पास नहीं है, 5 पेट्स जो हैं वो सिर्फ 2 लोगों के पास हैं। अच्छा, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ पेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं बरीरा के इज द डाटा इज इवन और ऑड? इवन और ऑड? इवन सर। या तो फॉर इवन n डिवाइड बाय 2, सो 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10th वैल्यू। यस और नो? यस सर। सो 10th वैल्यू आपकी कहाँ आएगी? आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से चेक करना होता है, वो होता है CF। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं? फर्स्ट वन को एज इट इज लिख दें, तो 3 प्लस 8 इज 11, 11 प्लस 3 इज 14। तो अब आप मुझे बताएं, मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा मीडियन जो है वो यहाँ पर मिल गया है, बिकॉज 10th वैल्यू इज हियर। एग्री और नॉट? यस। बरीरा, डू यू एग्री विद दिस? अगर समझ नहीं आई तो बेटा पूछो, मैं बताऊं फिर। जी सर, समझ आ गई। ओके, सो हम लोग आंसर में लिखेंगे 1, ये ना हो कि आप 8 लिख दें। तो नंबर ऑफ पेट्स आपने लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि कहता है कि मीन नंबर ऑफ पेट्स बताएं। तो हूर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मीन? मीन का फॉर्मूला क्या होता है जब फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास? जिसको आता है वो बता दे। हूर का माइक खराब है। Summation f divided by summation अरबाब, f x. हाँ सही है। समेशन एफ डिवाइड बाय समेशन एफ, उल्टा बोला है आपने, ठीक है। सो अब बिल्कुल। मैं थोड़ी सी ऊपर एडिटिंग करूंगा, मैं इसको जरा मिटा दूंगा, क्योंकि ये हमें यहाँ पे एफ एक्स निकालना है। सो बरीर, आपकी आवाज नहीं आई, तो आपको नहीं आता था क्यों? एफ एक्स, सो 0 इंटू 3, 0, 1 8 आर 8, 2 3 आर 6, 3 4 आर 12, 4 टाइम्स 0 इज 0, 5 टाइम्स 2 इज 10। सो समीशन एफ एक्स पेपर 1 है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो पहले तो ये 0 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 10 डिवाइड बाय 20। सो सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं कि 8 प्लस 12 20, 30, 36 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 36 डिवाइड बाय 20। जरा रीअश्योर कर लें कि यही आ रहा है कि नहीं। यस सर, सही है। ओके, सो 36 डिवाइड बाय 20 है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 4 पे काट लेते हैं। 4 9s आर 36 एंड 4 5s आर 20। एग्री? तो 9/5 आ रहा है। अब तक 9/5 नहीं छोड़ सकते हम लोग, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना उसको 10 या 100 बनाना पड़ेगा अरबाब। तो किसी भी नंबर को डेसिमल बनाने के लिए नीचे 10 या 100 होना चाहिए, तो आसानी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको जरा मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 10, राइट बरीरा? तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं कि 1.8 इज द मीन। एग्री? अगर सर हम लोग ने 9 डिवाइड बाय 5 लिख दिया तो मार्क्स ही मिलेंगे। बेटा वो 9 डिवाइड बाय 5 जो है लॉजिकली डाटा में मौजूद नहीं है ना, 1.8 लिखे ना, अच्छा जी। ठीक है। क्योंकि मैं साथ में मैंने मार्किंग स्कीम अभी ओपन करके देख ली है, तो उसमें 1.8 ही जो है ना वो आंसर है। अच्छा, तो इसका मतलब है 9/5 पे आपको स्कोर नहीं मिलेगा, फिर आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 नहीं, ठीक है। तो आपने वहां पे थोड़ा सा स्मार्ट शो करना है फिर, ठीक है। ओके जी, बहुत आसान सवाल। हाउ टू ऐड द फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है? तो क्या कोई बता सकता है कि हाउ टू ऐड द फ्रैक्शंस? सर एलसीएम। बेटा फिर वही आपने वही घिसा पिटा पुराना तरीका बताया ना, एलसीएम। Sir, 3 को 3 के से multiply कर दे.
सर बेटा डिनोमिनेटर मुझे, सेम करना है। हाँ ये बात मुझे सुननी 3 थी और 5 बस को वो कि कर देना। हाँ बात आपने भी ठीक कही यार बाब, लेकिन आपने ये जो तरीका होता है ना, ये मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, इसमें चांस ऑफ एरर बहुत ज्यादा होता है। वो करते तो हैं कि 3 5 15 कर देते हैं और फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। समझ आई? जी सर। तो मैं भी दोनों तरीके बता रहा हूँ। तो बरीरा, आपको डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका आता है ना? आपने क्वेश्चन पे मैं ले गया थोड़ा सा जूम इन, ठीक है? सो आपको, हाँ जी, तो अब आपने करना ही है कि इस साइड को ऊपर मल्टीप्लाई करना है 3 से, और इस साइड को मल्टीप्लाई करना है उस साइड का डिनोमिनेटर जो कि 5 है। अब देख रही हैं आप नीचे दोनों 15 बन जाएंगे अभी। तो 5 2 जार 10, 10 डिवाइड बाय 15 माइनस 3 3 जार 9 एंड 5 3 जार 15। ओके, नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम। ड्रैग अ लाइन, एक लाइन खींच लें, राइट 15 एंड राइट 10 माइनस 9। So 10 minus 9 is 1 by 15, which is your final answer. क्वेश्चन फ्रैक्शन में था इसीलिए छोड़ रहा हूँ फ्रैक्शन में ही, ठीक है बरीरा? तो आंसर लाइन पे आपने 1 by 15 जो है ना वो लिख देना है, लाइक दैट। गेट इट? नाउ अब दो फ्रैक्शंस कैसे डिवाइड होती हैं, कौन बताएगा मेरा बेटा? जो बताएगा इनाम होगा। 3/2 कर दे मल्टीप्लाई का साइन लगा के। वेरी गुड। सो इसका मतलब है कि डिवीजन को चेंज करना है मल्टीप्लिकेशन में और इनको शिफ्ट मारना है, लाइक दैट। गेट इट? जी सर। सो 3 3 जार 9 और 9 डिवाइड 10, तो अरबाब 9 by 10 क्या होगा डेसिमल में? सर 0.9। करता 0.9 बेटा सर। आप कैलकुलेटर के बगैर मुझे बताएं ना, 0.9 आपने पॉइंट को एक जम देनी है, लेफ्ट लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है ना 10 पे, जी अगर सर। मल्टीप्लाई हो रहा था तो एक जीरो लगाते, एग्री? 90 हो जाता। जी सर। तो क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में है तो मैं फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ूंगा, 9 by 10। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बरीरा, हर साल ये पेपर में आता है, 2 नंबर मिलते हैं इस पे, ठीक है? हर साल पेपर में आता है, ठीक है? अब आपकी चॉइस है कि देयर आर 4 quantities mentioned and all of them are distances, agree, with different units. Now the choice is yours कि आप किसको क्या बनाना चाहती हैं। तो 3200 सेंटीमीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत टाइम लगेगा, तो हम ऐसा करते हैं सबको सेंटीमीटर बनाते हैं क्योंकि सबसे बड़ा नंबर इसमें 32,000 है, एग्री? जी सो लेट्स सी, वन बाय वन हम करेंगे क्योंकि हमें इनको एक जैसा करना जरूरी है, तभी हमें समझ आएगा, ठीक है? सो लेट्स चेक। 3.1 किलोमीटर में वी मस्ट बी हैविंग 1000 मीटर, यस और नो? सर वो तो मीटर्स है ना, फिर सेंटीमीटर के लिए फिर हायर वो यूज करेंगे। ओके, तो सेंटीमीटर के लिए हमें 100 से और मल्टीप्लाई करना जी पड़ेगा, एग्री और नॉट? हूर, जी डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? आई एम कन्वर्टिंग किलोमीटर टू द मीटर एंड मीटर टू सेंटीमीटर, यस और नो? जी। ओके, थैंक यू सो मच हूर। सर सो ये देयर इतनी आर हम 5 जीरोस, हाउ मेनी जीरोस? 5 जीरोस हैं सर। तो इसका मतलब है कि हमें पॉइंट को 5 जंपे देनी है, तो 1 2 3 4 5, तो मतलब 4 जीरोस लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे? 4 zeros to तो 310,000 वेरी गुड, सेंटीमीटर। तो ये इसका मतलब है कि ये हो गया जी 310,000 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी? अब वो 32,000 है, अब फॉर श्योर सी बात है कि ये सबसे बड़ा नंबर है, एग्री और नॉट? जी 310,000 लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखेंगे 3.1 3.1 किलोमीटर, यस? किलोमीटर। हाँ ठीक है जी, इट इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके जी, सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो आई हैव अ डाउट विद द 3300 मिलीमीटर। तो 3300 मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर का स्केल पता है कि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, यस और नो? जी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो ये तभी नीचे वर्किंग के लिए जगह छोड़ी है इन्होंने, एग्जामिनर चाहता है कि आप वर्किंग करें। तो ये आ रहा है जी 3300 और ये आ रहा है x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3300 is equals to 10x, so divide by 10 on both sides, तो 10 10 कट गया, 0 0 कट गया, so x is equals to 330 310। सेंटीमीटर। तो सबसे छोटा नंबर ये 330 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं? जी सर। तो ये हो गया जी, इसको हम लिखेंगे 3300 मिलीमीटर्स, यस और नो? जी ओके, सो 34 मीटर में 3400 होंगे ना, डेफिनेटली, सो दैट वुड बी 34 मीटर। सो 3200,000 जो है, 32,000 जो है ये सेंटीमीटर जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है, गेट इट? जी सर। जी बेटा, सबको समझ आ गई है कि नहीं?
Anyone having any सर doubt? तो इसमें इतनी पूछिए अभी। कैलकुलेशन की क्या जरूरत है, तो बेसिक चीज है ना। बेटा बेसिक चीज है, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात बच्चे मार खा जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। इस तरह के बाज़ औक़ात एग्जामिनर 0.001 किलोमीटर लिख देगा और बच्चे कहेंगे यार किलोमीटर बहुत बड़ा यूनिट है, उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन कैलकुलेशंस में वो उन बाकियों से छोटा होगा यूनिट, ठीक है। बिल्कुल। मतलब देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि इफ आई से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 500 मीटर बड़ा है या 0.1 किलोमीटर बड़ा है, ये आप बताएं मुझे, विच वन इज द ये लार्जेस्ट। 500 मीटर। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है ना, लेकिन अब वहां पे उसने 32 32 31 कुछ दिया था, तो जी हमें जी। अपने आप को श्योर करना है वहां पर, ठीक है। समझ आ गई। जी जी सर। तो इस क्वेश्चन में ये पार्ट हुआ कि अकॉर्डिंग टू मी ना दिस क्वेश्चन वाज टफ। तो ये क्वेश्चन टफ था थोड़ा, 2 नंबर के लिए अच्छी खासी वर्किंग करनी है बच्चों को, बगैर वर्किंग के एक्चुअली देखिए, डिफरेंट टीचर्स में यूट्यूब पे भी देखता हूँ, क्लासेस में भी लोग पढ़ाते हैं, लोग रट्टा मरवाते हैं इन चीजों पे। तो बेटा आप रट्टा ना मारे, जब तक आप रट्टे लगाएंगे ना तब आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में वो रट्टा काम नहीं आएगा। तो बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा कि हर वीडियो गलत होती है और हर टीचर गलत होता है, हर टीचर की अपनी टेक्निक होती है, लेकिन रट्टा लगाना जो है ना, वो किसी टीचर, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट रट्टा लगाए। और आप भी जब रट्टा लगाओगे तो आप एक ही क्वेश्चन कर सकेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फॉर श्योर फंस जाएंगे, ठीक है। चले जी, 9 क्वेश्चंस हो गए हैं, जरा 10 क्वेश्चंस देख लें जरा। ये बना, द टेबल शोज द मंथली रेंट फॉर 9 अपार्टमेंट्स एंड एडिशंस ऑफ दीज अपार्टमेंट्स फ्रॉम द सिटी सेंटर। सो बरीरा, ये क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में फॉर श्योर होगा, ठीक है। आपने ये 5 जो है ना वैल्यूज, इनको प्लॉट करनी होंगी। कंप्लीट ऑफ स्कैटर डायग्राम, आप स्कैटर डायग्राम को कंप्लीट करें। तो 2 पे लगाना है 480, तो 2 ये है, तो 480 हम लोग देखेंगे यहाँ पर होगा 480, राइट। टिक लगा दिया मैंने, ओके। सो 3 पे भी हम लग 4.3 पे लगाना है 270, सो 4.3 ये है, तो रूलर रखना है बरीरा, ठीक है। सो 270 वुड बी समवेयर हियर, या एग्जैक्टली। सो देन 2.3 पे लगाएंगे 390, सो 2.3 है ये लाइन, तो आंसर इज 390, तो 390 वन ब्लॉक डाउन, सो दैट्स द आंसर। 3 पे लगाएंगे 360, सो 3 पे आएगा जी 360, तो 360 हो गया ये, ओके। 1 पे आएगा 530, सो 1 पे आएगा जी 530, सो 530 is this one. Okay, can you guys tell me what type of correlation is shown in the diagram? Is it positive or negative? It's negative sir. It's a negative relationship because values are flowing like this. Yes or no? अगर ये values ऐसे होती तो वो positive होता. Agree? So relationship is positive, sorry negative. So आप यहाँ पे लिखेंगे negative correlation. क्या लिखेंगे जी? नेगेटिव कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन ना भी लिखें तब भी नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, 2 नंबर तो ये प्लॉट करने के थे, तो बरीरा ये नंबर जाया नहीं करना, ठीक है बेटा। ऑन द स्केटर डायग्राम ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो बरीरा बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको कि नहीं? जी सर आ रही है। हाँ हाँ जी बेटा, रेगुलर क्लासेस होंगी, अच्छा, अब आपके पेपर के दिन तक, ठीक है, जी नो छुट्टी। सो अब आपने ऐसा करना है कि रूलर रखना है। अब ये ना हो कि आपने लाइन इधर लगा दो, ये लाइन गलत है क्योंकि वैल्यूज नीचे हैं। लाइन इधर भी नहीं लगानी क्योंकि वैल्यूज ऊपर रह गई हैं। लाइन ऐसे लगानी है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स क्रॉस करें और दोनों साइडों पर इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स हों। सो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच रहा हूँ, ये मुझे लगता है कि ठीक होनी चाहिए। मैंने लाइन लगा दी है, मैं रूलर रिमूव करता हूँ ताकि नजर आए। जी देखें जरा, लाइन के ऊपर भी मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं और लाइन के नीचे भी मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, और 3 पॉइंट एग्जैक्टली जो है बिल्कुल 19-20 के फर्क से लाइन के ऊपर से गुजर रहे हैं। यस और नो? Yes sir. तो ये आपकी बहुत एक्यूरेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट है, ठीक है बेटा। सो कहता है कि यूज योर लाइन ऑफ बेस्ट फिट को इस्तेमाल करो। मंथली रेंट फॉर एन अपार्टमेंट निकालो विच इज 4 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सिटी। तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यू हैव टू पिक अ लाइन हियर विद द कर्व, सॉरी लाइन। और अब इस पॉइंट को आप मेजर करें इस साइड पर, तो ये इसका मंथली रेंट होगा, तो $260 जो है वो जो है आ रहा है यहाँ पर। ओके, जरा एक चीज जरा समझ डालें, यहाँ पे लिखा है एस्टिमेट, जरूरी नहीं कि 260 आए आपका आंसर, लेकिन एटलीस्ट आपका आंसर 250, 255, 270 इस तरह होना चाहिए। ये ना हो कि आप 300 पे जा रहे हो, गेट इट। क्योंकि आपकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट गलत लगेगी तो फिर वो रिजल्ट भी गलत ही आएगा, राइट हूर? डू यू गेट दिस और नॉट? आई एम मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 11, बरीरा।
Yes, Do you get this? Can I proceed yes, further? yes, sir. Okay, now it's a probability question. Now they say that 100 students were asked. एक बंदा क्वेश्चन तो पढ़ जरा कि वो भी मैं ही पढ़ लूं. 100 adults were asked the color of their car and the results are shown in the table. So there are 100 students. Okay. Write down the relative frequency that one of these car is blue. So blue is 23. So 23 divided by 100 is the answer. ठीक है बरीरिया? Yes or no? बरीरा टाइम पे माइक ऑन करें, हम आपके लिए यहाँ पे बैठे नहीं बस. Okay. A different group of students of 1200 adults were asked the color of their car and the relative frequency of one of these adults owning a white car is 0.3. Find the number of these adults who own a white car. So 0.3 multiply with 1200. So point को हटाना पड़ेगा. तो अरबाब ये 0.3 को क्या लिख सकते हैं बगैर पॉइंट के? आजिम? 3. 3 what? 3.0. 3 होगा. बेटा 3 by 10 बोले ना यार. 3/10. Yes, it's 3 by 10. So multiply with 12,000. Sorry, 1200. So 0 cancel. 3 multiply by 120 is 360 गाड़ियां जो हैं वो वाइट होंगी. ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है. 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि वाइट होगी और 0.7 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है. गैरे? अच्छा, आईजीसीएसई और जीसी के दोनों के पेपर्स में ये क्वेश्चन आता है. बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट नंबर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ. तो वन सिग्निफिकेंट फिगर को पहले सर्कल करें. ये है क्योंकि 0 टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट. यहाँ पे ये है और यहाँ पर ये है. एग्री? सो अरबाब ये 0.28 क्या बन जाएगा? सर 3 बन जाएगा. वेरी गुड. तो 0.3 बोले ना बेटा, 3 नहीं ना बोलना. 0.3. ओके, 3 के बाद 7 लिखा है तो ये बनेगा 40. 4. यस सर 40 बन जाएगा. 7 के बाद 7 लिखा है तो क्या ये बनेगा 80? जी सर. एग्री? सो ये 3 नंबर लिखने का आपको मिलेगा 1 नंबर अगर एग्जामिनर को नजर आ गया तो. ठीक है. सो अरबाब वी नो दैट कि हम 0.3 को 3 by 10 लिख सकते हैं. यस और नो? बिल्कुल. अब देखें एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के अंदर कैसे इंसर्ट करते हैं, जरा इसको सीख लें आज. ये 3 ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 10 नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. यस और नो? एग्री? जी सर. जी. अच्छा जरा देखें, मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ऐसा करता हूं कि 0 0 काट देता हूं. तो 3 4s are 12. So 12 divide by 80. So 12 divide by 80 आप कटिंग कर लें तो ये मैं 4 के टेबल में काट लेते हैं. 4 3s are 12 और 3 by 20. So क्या 3 by 20 आपका आंसर है अरबाब? नहीं सर. डेसिमल हाँ जी. नीचे वाले को क्या बनाऊं? डेसिमल में लिख दो. नीचे वाले को क्या बनाएंगे? डेसिमल में 10 तो नहीं लिखना बना है. सकते ना क्योंकि बड़ा नंबर है ना, तो इसको 100 बनाना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 100 बन जाएगा ना. So 15 divided by 100 is equals to what? It is 0.15. Yes or no? So that's how it is. बरीरा आपकी क्लास लीव हो गई थी तो आप जरा गौर करें. By writing each number correct to one significant number. बेटा ये लिखा था 0.28. पहला सिग्निफिकेंट है यहाँ पे 2, दूसरे में है 3 और नीचे जो डिनोमिनेटर में 77.8 लिखा है वहां पे है 7. ओके, 2 के बाद है 8 तो इसलिए बनेगा 0.3. 3 के बाद है 7 और ये 37 लिखा था तो इसलिए हो गया 40 और नीचे लिखा हुआ है 77 तो ये हो जाएगा 80. गेट इट और नॉट? So get it. ओके, तो बस आपने सिंपल वो किया. अच्छा, मैंने ये सिखाया एक्स्ट्रा के 0.3 को हम 3 by 10 लिख सकते हैं और किसी भी फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के अंदर डालने का तरीका ये है कि आप न्यूमरेटर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कर दें. समझ आ गई बेटा? जी सर. चलो जी, शुक्र है भाई. 12 सवाल हो गए हैं. अच्छा जी, ये बड़े आसान सवाल हैं और इनमें नंबर आपके ज़ाया नहीं होने चाहिए. अच्छा जी, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है तो जरा प्लीज गौर करें सब. फर्स्ट ऑफ ऑल x मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर x मल्टीप्लाई होगा इससे. राइट हूर? यस और नो कमेंट कर दो, मैं देख रहा हूं. थैंक यू. सो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर माइनस 4x. यस और नो बरीरा?
अब +3 मल्टीप्लाई होगा x से और +3 मल्टीप्लाई होगा -4 से, +3x -12, यस और नो? सो x स्क्वायर, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों की आपस में कुछ ना कुछ होता है, तो प्लस माइनस इज माइनस, साइन ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, सो -x -12. सो दिस इज द एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफिकेशन. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, दो नंबर हैं इसके, x स्क्वायर -x -12. जी अरबाब बेटा जरा ये मल्टीप्लाई करके बोलें क्या आएगा. 5x plus 10. ओके जी, 5x + 10, वेरी गुड. अभी एक मिनट सबर. हाजिम मल्टीप्लाई करें जी. जी सर. जी 2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 2x -4x आ जाएगा और फिर +2. गुड जॉब. ओके अरेंज करें क्वेश्चन को. सर x + 12. वेरी गुड, आपने डायरेक्ट ही कर लिया, तो पहले आप अरेंज कर लेना पेपर में, गलती का चांस नहीं है. गलती कर लेंगे तो ऐसे फिर बाद में खफा होंगे कि यार ये मैं कर सकता था. सो x + 12 इज द फाइनल आंसर. राइट बरीरा, समझ आइए बेटा. ओके जी, पार्ट बी देखें जी. बरीरा, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं बरीरा, प्लीज टेल मी. टर्न ऑन द माइक प्लीज. सर 4b/3 को हम मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे आई गेस. बेटा आपको मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूँ, ऊपर भी मैंने क्वेश्चन किया, फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करें बस, ठीक है. सर तो वही तो कर रही हूँ. तो आपने 4b/3 को आपने कहती है 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप ये बोले ना कि ऊपर नीचे 9 से करो मल्टीप्लाई. वही बात हुई ना. लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि आपके पास इस पेपर में कैलकुलेटर नहीं है, इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई क्यों कर रही हैं पहले तो आप. सर अगर हम इस 4b क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 5b मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 3. पता नहीं क्या बोला आपने, खैर बहरहाल इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए लाइन एक्सटेंड कर रहा हूं. मैं 9 को तो 3 नहीं बना सकता, लेकिन 3 को 9 बना सकता हूं मल्टीप्लाइंग बाय 3 से, यस और नो? सो 3 4s आर 12b डिवाइड बाय 9 प्लस 5b डिवाइड बाय 9. So denominators are same. So write the denominator once. Add the numerators 2b plus 5b. So 17b divided by 9. This is your final answer. उसकी फिर क्लास लीव हो गई है, उसके इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग एक मिनट के लिए जरा वेट करते हैं कि अल्लाह करे कि शायद वो वापस आ जाए. ओके जी, राइट 0.000.863. तो अरबाब क्या ये नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से छोटा है सर. इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 की पावर माइनस में आएगी, यस और नो? जी सर. तो ये 1 पॉइंट्स को जम 2 देने हैं तो 1 3 2 4. 3 4. वेरी गुड, जबरदस्त यार, जबरदस्त, तुम्हें ये आ गया. अच्छा 8.63 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ऑफ -4. हाजिम राइट और रॉन्ग? राइट सर. ओके, सो तो नहीं रहे हो? नहीं सर, नहीं नहीं. अच्छा जी, राइट डाउन द नेम ऑफ द डेजर्ट विद द लार्जेस्ट एरिया. तो सबसे ज्यादा बड़ा एरिया किसका है? सो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी तो वो कौन सा है? 10 पावर 7 नजर आ रहा है आपको? 10 पावर 7. लेकिन हाँ हाँ सही है, वही है अंटार्कटिका. हाँ ना, तो उसका उसके अंदर एक एक्स्ट्रा जंप है ना, एक एक्स्ट्रा जीरो है, सो अंटार्कटिका. तो आपने नाम लिखना है, एरिया नहीं लिखना, हमने नेम लिखना है. राइट डाउन द नेम ऑफ द डेजर्ट, ठीक है. कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द अरेबियन एंड कलाहारी डेजर्ट. अच्छा ये जरा सीखें इसको. ये 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 और 5 जीरोस, यस और नो? जी. ओके, और कलाहारी है ये, तो ये आएगा 9 और 4 जीरोस, यस और नो? 1 2 3 4 1 2 3 4 5. गेट इट? यस 1 सर. 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5 6. ओके, दोनों को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म खोल लिया. कैलकुलेटेड टोटल एरिया, तो इन दोनों को ऐड करना है. तो 2 3 1 2 3 4 जीरोस 5 जीरोस लिख के, अच्छा नीचे वाला नंबर लेफ्ट से हमेशा राइट से शुरू करते हैं. 0 0 0 0 0 5 0 और 9.
ऐड कर लें, 1 2 3 4 5, 9 + 3 23 + 9 कर लें बस, चलो सिंपल 32 आता है। तो कहता है आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दो। तो बरीरा बेटा, इज दिस नंबर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? इज दिस नंबर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? Later, sir. Yes, it is greater than 1. So इसका मतलब है कि the 10 power must be positive. Yes or no? So let's go. 1 2 3 4 5 6. So that would be 6. So 3.2 multiplied by 10 power positive 6. Yes or no? Get it? Yes, sir. Okay जी, look at this. इंडेक्सेस आ गए हैं, बेसिस आर सेम, तो अपर में से लोअर माइनस होती है। तो आपको अगर ये भूल जाता है बार बार, तो आप ऐसे भी लिख लिया करें, 7 पावर -3 डिवाइड बाय 7 पावर -4। तो राइट द बेस वंस, अपर पावर में से लोअर पावर को माइनस करें। ये माइनस जो मैंने लगाया है ये बिल्कुल फॉर्मूले का है, और लोअर पावर है हमारे पास -4, राइट अरबाब? तो 7 -3 + 4, तो 7 पावर 1 इज द आंसर। सो मतलब 7 इज द आंसर। गेट इट? Yes, sir. Okay जी, they say that find the value of k when 3 into 6k is equals to 3 square। so जी जरा 6 into k मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 3 पावर 6k is equals to 3 square। so when bases are same and there is equals to, indices में पढ़ा चुका हूँ। तो इसका मतलब है पावर्स आर इक्वल। तो मैं 3 काट रहा हूँ, इसलिए काट रहा हूँ ताकि आपको ये 6k is equals to 2 नजर आ जाए। तो 6k is equals to 2। so divide by 6 on both sides। So k is equals to 2 by 6 or 1 by 3। So it is 1 by 3। समझ आ गई बेटा बरीरा? ये मोस्टली 15 क्वेश्चंस तो मैं अपनी क्लास में कर ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद ये बाकी के जितने क्वेश्चन हैं ये इंशाल्लाह ताला हम लोग कल करेंगे, ठीक है। और इसमें ये सर्कल्स जो हैं वो भी मैं आपको करा दूंगा। सर्कल्स की आपने वीडियो देख लेनी है, अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स, ठीक है बरीरा? जी सर। आप जो देख चुके। अच्छा, ये क्वेश्चन जरा मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ये मैंने अभी तक शायद मेरे ख्याल से आपको नहीं पढ़ाया है, आप छुट्टियों पर थी। f(3) नहीं सर, मतलब मैंने कि सीख आपने लिया है, आ फंक्शन गया के अंदर मुझे। आ गया ये। तो 6 जी। into 3 plus 2 ये divide by कौन सा? 5, 6 3s are 18, 18 plus 2 divide by, so 20 divide by 5 equals to 4। get in? और how to find out the inverse of the function, 4 स्टेप हैं। let f of x is equals to y। तो y की जगह पे लिखेंगे y is equals to 6x plus 2 डिवाइड बाय 5। ओके, दूसरा स्टेप है make x the subject। ये अरबाब आपका भी, अच्छा, make x the subject, x को सब्जेक्ट बना, 5 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 5y प्लस 2 यहाँ पर आकर माइनस होगा, और x के साथ 6 लगा हुआ है तो वो डिवाइड हो जाएगा, राइट अरबाब? Yes, sir. Multiplication change हो गया। तो मतलब 5 को यहाँ पे लाके मल्टीप्लाई किया पहले, फिर 2 को यहाँ पे तो लाके वो माइनस डिवाइड हो किया गया। है, और 6 को लेकर डिवाइड। अब थर्ड स्टेप होता है रिप्लेस करो, x और y को रिप्लेस करें, रिप्लेस x विद y। सो आंसर हो जाएगा 5x - 2 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू y। तो ये आपका आंसर है, ये इनवर्स फंक्शन है। ओके बेटा, फिर कहता है y इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x + 1 होल स्क्वायर। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो k लगाते हैं, x + 1 होल स्क्वायर। क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि आपको दो वैल्यूज गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। तो हम k निकालते हैं सबसे पहले। तो y इज इक्वल टू 2, ओहो, y इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 3, x is equals to 3, so 3 plus 1 whole square, so 3 plus 1 whole square is 4 square, right? 4 square 16, so that's 16 outside। so value 1 by 8 or not? Yes or no? Check here. Barira, can you hear me beta? Okay,
सो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट y व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है, सो हम ये इक्वेशन उठाएंगे y इज इक्वल टू k इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने k की वैल्यू निकाल ली है, सो y इज इक्वल टू 1/8 और x की वैल्यू है 9 प्लस वन होल स्क्वायर। So y is equals to 1/8 into 10 square is 100. So 100 divided by 8 is the answer. तो कटिंग कर सकते हैं हम लोग इसमें। So ये हो जाएगा 50 divided by 4 और ये हो जाएगा 25 divided by 2 और आंसर आ जाएगा जी 12.5। Yes or no? चलें बेटा, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला बाकी का पूरा ही दूसरा पेपर जो है, इसका जो बाकी हिस्सा है वो कल हम करेंगे। और मेरे ख्याल से तकरीबन हो गए हैं, बीच में 2 क्वेश्चन ऊपर छोड़े मैंने, ये 2 क्वेश्चन आसान आसान सवाल है और मैट्रिसेस है। सो इंशाल्लाह ताला ये हम लोग जो है कल करेंगे। वेक्टर्स भी मौजूद है, तो कल हम लोग जो है इनको हम लोग करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। थैंक यू।